کہ رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا۔ کل پہلا روزہ ہوگا۔ چیئرمین مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی نے اعلان کر دیا۔ سٹی نیوز نیٹ ورک کی جانب سے اہلیان وطن کو رمضان مبارک۔ آپ کو بتا رہے ہیں رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا۔ چیئرمین مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی نے رمضان المبارک کا اعلان کیا اور آپ کو بتا رہے ہیں کل پہلا روزہ ہوگا۔ چیئرمین مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی نے اعلان کر دیا۔ سٹی نیوز نیٹ ورک کی جانب سے اہلیان وطن کو رمضان کی مبارکباد۔ مبارک کا چاند نظر آنے کی شہادتیں موصول ہوئیں، جن میں پشاور، لاہور، سوات، سرگودا، دیر و دیگر مقامات شامل ہیں جہاں پر چاند نظر آ گیا ہے۔ لہذا اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا یکم رمضان المبارک 1445 ہجری 12 مارچ 2024 بروز منگل کو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی پوری عالم اسلام اور پاکستان اور تمام مسلمانوں کو رمضان کی آمد سب کو مبارک ہو۔ ماہ رمضان کے شروع ہوتے ہی شہریوں کے لیے اچھی خبر۔ فیصل آباد میں سحر و افطار کے اوقات میں بلا تعطل گیس فراہمی کا فیصلہ۔ فیسکو کا ماہ سیام میں بجلی لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کا اعلان۔ ریجن بھر کے فیڈرز پر مرمتی کام پر بھی پابندی لگا دی۔ واسا نے بھی پینے کے صاف پانی کی فراہمی کی یقین دہانی کر دی۔ افطار میں بلا تعطل گیس ملے گی۔ فیصل آباد ڈویژن کے لیے سحر افطار میں گیس فراہمی کا شیڈول مرتب۔ محکمہ سوئی گیس کے مطابق سحری رات میں 2:30 سے صبح 8 بجے جبکہ افطار میں سپہر 3 سے رات 10 بجے تک گیس ملے گی۔ رمضان المبارک میں بجلی کی بلا تعطل کی فراہمی کے لیے فیسکو کا اہم فیصلہ۔ فیسکو کا ماہ سیام میں لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کا اعلان۔ ریجن بھر کے فیڈرز پر مرمتی کام پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ تکنیکی مسائل اور دیگر خرابی کی صورت میں ایمرجنسی شٹ ڈاؤن لیا جا سکے گا۔ فیسکو چیف نے تمام سرکلز کو حکم نامہ جاری کر دیا۔ چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز فیسکو ملک تحسین اوان کہتے ہیں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کرنے پر متعلقہ عملہ معطل ہوگا۔ سحر افطار کے اوقات میں متحرک رہے گا۔ سی ای او فیسکو آپریشن سٹاف کی رہنمائی کرے گا۔ واسا فیصل آباد میں بھی رمضان المبارک میں پانی کی فراہمی کا ٹائم تبدیل کر دیا۔ مینیجنگ ڈائریکٹر واسا عامر عزیز کے مطابق یکم رمضان المبارک سے صارفین کو پینے کا پانی سحری کے اوقات میں 3 سے 6 بجے، افطاری کے وقت 4:30 بجے سے 7:30 بجے تک فراہم کیا جائے گا۔ رمضان المبارک کے دوران سرکاری دفاتر کے اوقات کار کا نیا شیڈول جاری کر دیا گیا۔ سکول، بینک اور دیگر اداروں کے اوقات کار تبدیل کر دیے گئے۔ رمضان المبارک میں سرکاری دفاتر کے اوقات کار بھی تبدیل کر دیے گئے۔ فیلڈ سٹاف کی ڈیوٹی 8 سے 3 بجے تک ہوگی۔ ڈپٹی کمشنر دفتر میں افسران 9 سے 4 بجے تک ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ رمضان المبارک کے لیے اسکولوں کے اوقات کار تبدیل۔ صبح 7:30 بجے سے 12:30 تک ہوں گے۔ جمعے کے روز اسکولوں کی ٹائمنگ 7:30 سے 11:30 تک ہوگی۔ ڈبل شفٹ اسکولوں کی مارننگ شفٹ 7:30 سے 11:15 تک ہوگی۔ ایوننگ شفٹ 11:30 سے 3:30 بجے تک ہوگی۔ جمعے کے روز ایوننگ شفٹ 2 بجے سے 5 بجے تک ہوگی۔ اسٹیٹ بینک کے اعلامیے کے مطابق یکم رمضان کو تمام بینک زکوٰۃ کٹوتی کے لیے بند رہیں گے۔ رمضان المبارک میں بینک پیر سے جمعرات تک صبح 9 بجے سے سپہر 2 بجے تک جبکہ جمعے کے روز صبح 8:30 سے دوپہر 1 بجے کھلے رہیں گے۔ ریجن بھر کی 1422 مساجد میں تراویح کا اہتمام۔ سحر و افطار اور تراویح کے اوقات میں 5980 سیکیورٹی اہلکار تعینات۔ فیصل آباد ضلع میں 5077، جانگ میں 534 اہلکاروں نے سیکیورٹی فرائض سر انجام دیے۔ ٹوبہ میں 179 اور چنیوڑ میں 134 اہلکار تعینات کیے گئے۔ رمضان کی آمد پر مہنگائی کا پارا ہائی۔ سیب، کیلا، انگور، تربوز اور دیگر پھلوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ دکانداروں کی خود ساختہ مہنگائی سے شہری بھی شدید پریشان۔ کہا غریب آدمی کیا کھائے، کہاں جائے، سب کچھ تو پہنچ سے دور ہے۔ فیصل آباد میں رمضان المبارک کی آمد پر مہنگائی سر چڑھ کر بولنے لگی۔ سیب، کیلا، انگور، تربوز، مالٹا، خربوزے اور دیگر پھلوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا۔ دکاندار نے بھی خود ساختہ اشیاء کے ریٹس بڑھا دیے۔ شہری کہتے ہیں غریب آدمی کیا کھائے، سب کچھ تو پہنچ سے دور ہے۔ کر ہی نہیں سکتے ہیں کوئی بھی چیز ہے۔ اب وہ افطاری کے ٹائم سموسے ہوتے ہیں یا پکوڑے ہوتے ہیں، اس میں آلو لے لیں یا پیاز لے لیں، وہ عثمان پر پہنچ گیا۔ پیاز تو پہلے بھی 200 روپے تھا اور اب 200 سے اوپر چلا گیا، 250-300 روپے کلو پیاز۔ کیا کرے گا وہ غریب آدمی؟ ایک وہ گھر میں وہ تیار چیز کر ہی نہیں سکتا، آلو پیاز بھی نہیں تیار کر سکتا، وہ کیسے کرے گا؟
रमजान अल मुबारक की आमद के साथ ही फलों की रेहड़ियों पर शहरियों का रश लग गया। शहरियों का कहना है कि कल पहला रोजा है, अफ्तार की तैयारी आज ही कर ली है। अफ्तार दस्तरखान फलों के बगैर नामुकम्मल सा होता है। पसंदीदा फल खरीद लिए हैं। गवर्नमेंट भी जो आगे रेडी छापड़ी वालों को या छोटे दुकानदारों को पकड़ते हैं। मंडी में जो कोई भी नहीं जाता, जिधर से हर चीज़ महंगी मिलती है। असल वजह मंडी है। जैसे अगर चीनी 80 रुपये किलो इधर, ऐसे ही मंडी में भी एक चीज़ का रेट होना चाहिए कि ये आपने ये चीज़ इतने की बेचनी है, इससे महंगी नहीं बेचनी। फलों की कीमतें: केला 150 से 250, सेब 250 से 400 रुपए, खरबूजा 100 रुपए से 150 रुपए किलो, किन्नू 250 रुपए से 400 रुपए किलो, अंगूर 600 रुपए, अनार 300 से 400 रुपए फरोख्त हो रहे हैं। कैमरामैन टीम के हमरा मरीम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। माह मुबारक का आगाज, जंग में शहरियों को रिलीफ देने के लिए मॉडल बाजार सज गए। दाल, सब्जी, फल, गोश्त और दीगर अशिया सस्ते दामों में दस्तयाब। रमजान अल मुबारक की आमद के साथ ही मॉडल बाजार भी सज गए। दाल, सब्जी, फल, गोश्त और दीगर अशिया मॉडल बाजार जंग रोड में दस्तयाब हैं। सस्ते दामों अशिया खुर्दनोश खरीदने के लिए लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता है। शहरियों का कहना था कि बाहर मार्केट की निस्बत मॉडल बाजार में अशिया सस्ती हैं। तकरीबन सारी चीज़ों में फ़र्क है। प्याज में और दालों में, खजूरों में भी तकरीबन आधा तकरीबन फ़र्क है। मसला काफ़ी बेहतर है, कीमत में फ़र्क है, लेकिन बस यही परेशानी है कि आसानी से ज़रा मिल जाए। शहरियों का इंतजामी अमूर के हवाले से कहना था कि काउंटर ज्यादा होने चाहिए। घंटों लाइन में खड़े होने के बावजूद नंबर नहीं आता, ऐसे तो हमारा दिन सामान खरीदने में गुजर जाएगा। शहरियों ने मॉडल रमजान बाजार में सस्ती अशिया की फरहमी पर इत्मीनान का इजहार किया। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ फसीन नकवी, सिटी 41 फैसलाबाद। टोबा इंतजामिया का अहसन इकदाम, रमजान में आवाम को रिलीफ देने के लिए फेयर प्राइस शॉप कायम कर दी। शहरियों को अशाए खुरोनोश 25% रियायत पर दस्तयाब होगी। टेक्सिंग में इंतजामिया का बड़ा इकदाम, रमजान में शहरियों को रिलीफ देने के लिए फेयर प्राइस शॉप कायम कर दी गई। शहरियों को अशिया खुर्दनोश 25% रियायती कीमत पर दस्तयाब होंगी। फेयर प्राइस शॉप पर खजूर, बेसन, प्याज, टमाटर, आलू, केला, दालें, सब्जियां मौजूद होंगी। शहरियों का कहना था कि महंगाई के तूफान में फेयर प्राइस शॉप किसी नेमत से कम नहीं। सस्ती अशिया की बदौलत गरीब भी रमजान अल मुबारक में दस्तरखान सजा सकेगा। ठीक ठाक हमारे हो रहा है, चीज सुथरी है, साफ सुथरा माहौल है। बाकी ये है भी रमजान च गरीब आदमी भी लैके खा सकता है, यदि कीमतें दे सकते हैं। हुण तां सब कुछ बाकी तो अल्लाह दा शुक्र है। फैक्ट्री मार्केट कमेटी मोहम्मद साजिद का कहना था कि फेयर प्राइस शॉप सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। शहरियों की सहूलत के लिए मर्द, खवातीन और बुजुर्ग अफराद के लिए अलग अलग काउंटर नस्ब किए गए हैं। ये फेयर प्राइस शॉप है, गवर्नमेंट की वज़ीर आला पंजाब की तरफ से लगाई गई है। टोबा टेक्सिंग ने हमने कल से इस्टेब्लिश की हुई है, कल से चल रही है और इसमें ए ग्रेड क्वालिटी का सामान है। सब पर ही 25% डिस्काउंट है थोक रेट पर। शहरियों ने फेयर प्राइस शॉप कायम करने पर इंतजामिया का शुक्र अदा किया। कहा फेयर प्राइस शॉप के बायस घरों के चूल्हे भी रमजान में जल सकेंगे। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ अहमद नदीम, सिटी 41 टोबा टेक्सिंग। चिन्योट के रमजान बाजार में एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप फाल, सार्फिन को अशराए जरूरिया आम मार्केट से 25% रियायत रेखों पर मिलेंगे। चिन्योट के रमजान बाजार में एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप फाल, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी सूबा खान का दौरा, अशाए खुर्दनोश की दस्तयाबी और म्यार का जायजा लिया। इस मौका पर सीनियर क्लर्क मजहर अब्बास भी उनके हमरा थे। इंस्पेक्टर मार्केट कमेटी मोहम्मद सईद शाकर ने ब्रीफिंग दी। सेक्रेटरी मार्केट कमेटी सूबा खान ने बताया कि सार्फिन को अशाए जरूरिया मार्केट से 25% रियायती नरखों पर मिलेंगी। आलू मार्केट में 55 रुपए और रमजान बाजार से 38 रुपए फी किलो मिलेगा। प्याज 157 रुपए फी किलो मिलेगा। टमाटर मार्केट में 160 जबकि रमजान बाजार से 109 रुपए फी किलो। इसी तरह लहसुन मार्केट से 600 और रमजान बाजार से 409 रुपए फी किलो मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक मार्केट कमेटी ने एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप का आगाज कर दिया है। इस पर 13 आइटम्स जो हैं, सब्जी, फ्रूट और खुश्क आइटम, दाल, चना, बेसन, खजूर वगैरह, हर आइटम पर 25% जो है वो सब्सिडी दी गई है। और इसके लिए हुकूमत पंजाब, वज़ीर आला पंजाब ने हमें 12 मिलियन रकम मुख्तस की है सब्सिडी की मद में। लीमू 130 की बजाय 99 रुपए फी किलो, सेब 320 की बजाय 218 रुपए फी किलो दस्तयाब होगा। केला 175 की बजाय 119, खजूर 500 की बजाय 368 रुपए फी किलो मिलेगी। अमरूद 102, खरबूजा 137 रुपए, दाल चना 165 रुपए फी किलो, जबकि बेसन मार्केट में 230 और रमजान बाजार से 170 रुपए फी किलो में मिलेगा। आला से आला चीजें हर आदमी को बिला
बिला तअत्तल उसको दी जाएंगी। और इसमें हमारे कुछ ऐसे आइटम्स हैं जिनमें पर केजी पे तकरीबन 200 रुपए का भी मार्जिन है, इसलिए ये हर आदमी को ये रिलीफ मिल रहा है और वो इसको वसूल करने के लिए तशरीफ ले। सेक्रेटरी मार्केट कमेटी सुबह खान का कहना था कि माह सियाम में सार्फिन को मियारी एशिया ज़रूरिया की कम कीमतों पर फराहमी तरजीह है। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। रमजान की आमद पर भी महंगाई के वार थम न सके। एलपीजी की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। सरकारी रेट 257 रुपए जबकि मार्केट में 320 रुपए पर पहुंच गए। महंगाई के तूफान ने गरीब सार्फिन की कमर तोड़ दी। माह रमजान के दौरान एलपीजी का इस्तेमाल भी गरीब की पहुंच से दूर हो गया। एलपीजी का सरकारी रेट फी किलो कीमत 257 रुपए है जबकि मार्केट की कीमत 320 रुपए फी किलो है। सार्फिन कहते हैं कि सैर अफ्तार में गरीब और मुतवस्सित तबके के चूल्हे कैसे चलेंगे। आपने सिलेंडर पकड़ा हुआ, आप गैस लेने आए? जी सर, हम कितनी गैस चाहिए आपको? मुझे 4 किलो गैस है। इससे पहले आपने कितने रुपए की डलवाई थी? 270 रुपये ले। अब कितना रेट बता रहे हैं आपको? अब 310 रुपये बता रहे हैं। 310 रुपए हो गए 2 से 3 दिन के अंदर। 40 रमजान से आने से पहले ही जो है वो आवाम के ऊपर ये महंगाई का बोझ गिराया गया। क्या ये इन्होंने तो अपने अपने रेट लगाए हुए हैं। हर जगह पे रमजान में सस्ती चीज मिलती है, लेकिन इन्होंने अपनी मनमानियां शुरू कर दी हैं। सार्फिन आए रोज खुद साख्ता कीमतों से भी परेशान। बोले एक रोज पहले कीमत कुछ और थी और आज रेट कुछ और है। ये इन्होंने तो अपने रेट लगाए हुए हैं। हर जगह पे रमजान में सस्ती चीज मिलती है, लेकिन इन्होंने अपनी मनमानियां शुरू कर दी हैं। अब गरीब आदमी क्या करे, रोटी कहाँ से कमाए, कहाँ पे बच्चों के खिलाए, क्या करें? बहुत हमारे लिए तो मुश्किल हो गया। सार्फिन कहते हैं दुनिया में मजहबी त्योहारों पर खसूसी राहत दी जाती है जबकि हमारे यहाँ लूटमार बढ़ जाती है। कैमरा टीम के साथ शराज बट, सिटी 41 फैसलाबाद। रमजान की आमद पर महंगाई बेकाबू। रोजमर्रा अखराजात पूरे करना मुश्किल। ताजरों में तशवीश की लहर दौड़ गई। रमजान मुबारक के आते ही फैसलाबाद में महंगाई का तूफान बरपा हो गया। ताजरों ने बढ़ती हुई महंगाई पर तशवीश का इजहार कर दिया। आवाम को हकीकी मानों में रिलीफ देना है तो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट और कमेटियों को फाल किया जाए। लेकिन देखें, ये जो चीज़ें आज से 2 दिन पहले 200 रुपये किलो सेल हो रही थी, प्याज मसलन 200 रुपये था, आज 300 रुपये हो गया है। इस तरह जो फ्रूट है वो पहले सस्ता था, आज रमज़ान की वजह से महंगा हो गया है। ताजरों का मजीद कहना था कि सब्जी, फ्रूट, दालें हर चीज पहुंच से बाहर होती जा रही है। बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से महंगाई बढ़ रही है। हुकूमत महंगाई पर कंट्रोल करे। हर चीज को हुकूमत को चाहिए कि हर चीज प्राइस कंट्रोल कमेटियां बनाई जाएं ताकि हर चीज कंट्रोल की जा सके। और मुल्कों में कोई त्यौहार आता है तो सस्ता होता है, तो इधर माह रमजान आता है तो हर चीज महंगी हो जाती है। ताजरों ने मईशत की मजबूती के लिए रिलीफ का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद जुनेद के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। बरामदात के फरोग के लिए हुकूमती इकदामात के समरात सामने आने लगे। खलीजी ममालिक की बरामदात में 36% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दौर हुकूमत में खलीजी ममालिक को पाकिस्तानी बरामदात में इजाफा। जुलाई 2023 था जनवरी 2024 तक खलीजी ममालिक को बरामदात 36% बढ़ गई। माली साल के 7 माह में खलीजी ममालिक को बरामदात 1 अरब 76 करोड़ डॉलर रही। गुज़श्ता साल इस अरसे में ये बरामदात 1 अरब 22 करोड़ डॉलर थी। हमारा जो डॉलर है वो एक जगह पे स्टेबल हुआ है और फूड जो रॉ फूड है उसकी हमारी एक्सपोर्ट काफ़ी बड़ी है, टेक्सटाइल की भी बड़ी है, लेकिन इसके साथ साथ हमारा जो मीट है उसकी एक्सपोर्ट भी बहुत बड़ी है। डॉक्टर सजाद अरशद ने बताया कि सऊदी अरब को पाकिस्तान की बरामदात 50% बढ़ गई। जुलाई ta जनवरी सऊदी अरब को 38 करोड़ 12 लाख डॉलर की बरामदात की गई। बरामदात में इजाफे की बड़ी वजह डॉलर का मुस्तहकम होना है और इसका सहरा निगरां हुकूमत के सर जाता है। तो सऊदीया की डिमांड है और दूसरे कंट्रीज की डिमांड है, इस वक्त वो पूरी नहीं हो रही। रमज़ान भी आ रहा है, वहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो ये जो ऐसी बात नहीं है, हमारी जो एक्सपोर्ट इस एग्रीकल्चर सेक्टर की वो बेहतर हुई है, लेकिन इस हमारे पास रॉ फूड है। जुलाई ta जनवरी मुत्तहिदा अरब अमारात को 25% इजाफा हुआ। UAE को बरामदात 82 करोड़ डॉलर से बढ़कर 1 अरब 16 करोड़ डॉलर हो गई। कारोबारी अफराद ने नौ मुंतखब हुकूमत से खलीजी ममालिक के साथ बरामदात में मजीद इजाफे के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करने की उम्मीद का इजहार किया है। कैमरा टीम के साथ शराज भट्ट, सिटी 41 फैसलाबाद। पाकिस्तान की टेक्सटाइल बरामदात में सालाना बुनियादों पर मुसलसल तीसरे महीने इजाफा। फरवरी 2024 में सालाना बुनियादों पर टेक्सटाइल बरामदात में 20% इजाफा 1 अरब 41 करोड़ डॉलर रही। पाकिस्तान की टेक्सटाइल बरामदात में सालाना बुनियादों पर मुसलसल तीसरे महीने इजाफा। फरवरी 2024 में सालाना बुनियादों पर टेक्सटाइल बरामदात 20% इजाफा 1 अरब 41 करोड़ डॉलर रही। फरवरी 2023 में टेक्सटाइल बरामदात का हुजम 1 अरब 18 करोड़ डॉलर था। रवा माली साल के पहले 8 माह के दौरान टेक्सटाइल बरामदात में
सालाना बुनियादों पर 1% कमी हुई। माहाना बुनियादों पर टेक्सटाइल बरामदात में 3% कमी वाक़ हुई। जनवरी 2024 में टेक्सटाइल बरामदात 1 अरब 46 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड की गयी। पिछला माली साल के 8 माह में 11 अरब 22 मिलियन डॉलर के मुकाबले 11 अरब 15 मिलियन डॉलर बरामदात रही। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, सिटी 41, फैसलाबाद। फेस्को की ओवर बिलिंग गरीब काश्तकारों की जान पर बनाई। महंगी बिजली के बाद जायद यूनिट से परेशान, फसलों की पैदावारी लागत आसमान को छूने लगी। महंगी खाद बिजली के बाद ओवर बिलिंग ने गरीब किसानों की चीखें निकलवा दी। जंग में फेस्को की ओवर बिलिंग के बाइस काश्तकारों को शदीद मुश्किलात। जायद बिल्स के बाइस फेस्को दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर। सुनवाई न होने की दुहाई। बोले महंगाई ने कमर तोड़ दी, ओवर बिलिंग के बाइस काश्तकारी करना मुश्किल हो गया। ये तो हर आदमी को पता है कि ज़राअत जो है ना वो पाकिस्तान की मुईशत की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि एक तो हमें हर एक चीज़ के जो है ना वो रेट बहुत ज़्यादा है। हमारे जो ज़राई मुदाखिल हैं, मसलन डीज़ल है, ये बिजली के बिल हैं, खाद की कीमतें हैं, कहाँ आसमानों के ऊपर बातें कर रही हैं। और हमें बार बार जो है ना इस चीज़ के लिए हम बहुत कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये महकमे जो आवाम की आसानी के लिए बनाए जाते हैं, ये सारे पाकिस्तान में तमाम महकमों की यही हालत है कि वो आवाम के लिए अजाब बन चुके हैं और अपनी अयाशियों और अपनी अल्ले तल्लों की वजह से ये सारे बिल जो हैं टैक्सेस और फिर बिल पर बिल डाल दिए जाते हैं और इंसान तो अब आम आदमी तो परेशान है इतना कि उसका चूल्हा जलाना भी बड़ा मुश्किल हो गया। किसान बोर्ड के मरकजी जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर अब्दुल जब्बार कहते हैं, माहाना बुनियादों पर सैकड़ों इजाफी यूनिट्स काश्तकारों के बिल्स में डाले जाते हैं। फेस्को हुकाम बिल्स की दुरुस्ती की सूरत में भी अगले माह दोबारा से इजाफी यूनिट शामिल कर देते हैं। देखिए, इस मुल्क के अंदर जहाँ आम आदमी परेशान है बिजली के बिलों से, उसी तरह किसान जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। किसानों को भी, आम आवाम को भी, पब्लिक को एक तो ओवर बिलिंग की जाती है, फिर डिफेक्टिव बिलिंग डाली जाती है और फिर वो बिल ठीक करवाने के लिए पब्लिक जब दफातर में आते हैं तो उनको एक दफ़ा जो है वो कह दिया जाता है कि जी आपका बिल ठीक हो गया है, जबकि उसे बिल्कुल ठीक नहीं करते, उसे माइनस नहीं करते। जो गलत बिल, ओवर बिल डाला जाता है उसे सेट असाइड करके अगले महीने फिर डाल दिया जाता है। फिर आवाम और किसान अपने काम काज छोड़कर फिर दफ्तरों के चक्कर लगाता है। काश्तकारों ने फेस्को हुकाम से नोटिस लेने और ओवर बिलिंग के खात्मे के लिए जामिया पॉलिसी तश्कील देने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 शंग। फैसलाबाद में फलाही प्रोग्राम की नाकिस कारकर्दगी, खवातीन छोटे बच्चों के साथ ख्वार होने लगी। बोली बैठने के लिए कुर्सियां और पीने के लिए साफ पानी तक मैसर नहीं। फैसलाबाद में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम अमले की नाअहली, रमजान राशन के इंदराज करवाने आई खवातीन खवार होने लगी। लंबी कितारें, सायादार जगह न होने पर औरतें बिलबिला उठी। कहा जम्मे गफीर में छोटे बच्चों के साथ मुश्किलात का शिकार हैं। कई घंटों के इंतजार के बाद वापस भेज दिया जाता है। बिल घर घर भेज रहे ने, बिजली का, गटरां का, बिजली का हर चीज आ रही है घर ते सानू इत्थे बुला के जलील किया जाता। औरतां नू घरों कट के जिद्दां बिल आंदा ना, इस तरह ही साडी मदद साडे घर पहुंचनी चाहिए। मेरा कार्ड भी नहीं जमा करन दे, 2 साल हो गए मेरे पैसे बंद होया नू, मैनू पैसे नहीं मिल रहे। मैं बेवा हां, मेरियां 2 बच्चियां वा। खवातीन का मजीद कहना था कि खवातीन को धक्के देने और बदतमीजी करना अमले का मामूल बन गया है। 6 बजे से मौजूद हैं लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। किसी दी थां दे विच बैठी है, काफी मजबूर आ। 8-9 साल तो बंदा मेरा बीमार है। 8 बेटियां ने, मेरे को फर्ज अदा करने वास्ते भी नहीं है पैसा। खवातीन ने हुकूमत से मसाइल को फौरी हल करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद।